सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा बरन ना सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। धन वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा, लोक अवगुणा की बने गंठड़ी। गुण ना विहाजे कोई, लोक अवगुणा की बने गंठड़ी। गुण ना विहाजे कोई, गुणा का गाहक नानका। विरला कोई होए, गुण का गाहक नानका। विरला कोई होए, गुर प्रसादी गुण पाईयन। जिसनो नदर करे, गुर प्रसादी गुण पाईयन। जिसनो नदर करे। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, मारू की वार अंदरों भले अमरदास गुण तेरे, तेरी मां तू ही बन आवे। इन्हां वडियाइयां दे मालिक धन सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी का पावन पवित्र पावन श्लोक जिसका पाठ हुणे आप जी ने सरवण किया है। ये पावन श्लोक ही आज की विचार का केंद्र है। आओ मन बिरतियां नूं इकागर करदियां होया गुरु पातशाह जी ने जो विचार अधीन श्लोक अंदर सानू बहुत ही वडमुला ते कीमती उपदेश बख्शिश किया है। मन बिरतियां इकागर करदियां होया इस वडमुले कीमती उपदेश नूं समझण दा यतन करिए। विचारां की आरंभता तो पहला गुरु फतेह नाल सांझ पाइए। सारे आपो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी ने विचार अधीन पावन श्लोक के अंदर गुण अते अवगुणा का जिक्र किया है। सतगुरु जी फरमाउंदे ने कि मैं देखना संसार अंदर अवगुणा के गाहक बहुत ने, अवगुणा नूं खरीदण वाले, अवगुणा नूं अपनाउण वाले वो बहुत ने, पर गुणा का गाहक संसार के अंदर कोई विरला है। लोग अवगुणा की बन्ने गंठड़ी, गंठड़ी का अर्थ है पांड।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੰਠੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੈ ਕੋਏ। ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਰਿਹਾ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਣ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਗੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੁਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਪਿਆਰ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਪਿਆਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵਗੁਣ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਦਵੇਸ਼, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵਗੁਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਣ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਗੁਣ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਰਸ ਕੋ ਗਾਂਡੋ ਚੂਸੀਐ, ਗੁਣ ਕੋ ਮਰੀਐ ਰੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਚੂਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਕੋ ਮਰੀਏ ਰੋਏ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਣ ਕੋ ਮਰੀਏ ਰੋਏ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਉਦਮ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਉਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਵਗੁਣ ਇਨਸਾਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਫੁਲਵਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਫੁਲਵਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਹੋਵੇਗੀ ਫੁਲਵਾੜੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੰਦਗੀ, ਘਾਹ ਫੂਸ, ਨਦੀਨ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਦੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਪਲਾਟ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਦੀਨ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਫੁਲਵਾੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਗੁਣ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਦਵੈਸ਼, ਸਾੜਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀਮਤ ਉਸ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨੇ। ਜਿਸਨੇ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਕਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਘਰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨੇ ਗੰਠੜੀ, ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੈ ਕੋਏ। ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀਮਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ,
मेरे वर्गा कोई गुणवान नहीं हैगा। इस करके जो साडा हंकार है ये साडे अंदर सिखण दी पाबंदी ला दिंदा है। हंकार कहते कि मैं श्रेष्ठ हाँ सियाणा, आपस को दीर्घ कर जाने औरन को लग मात, मासा मनसा बाचा कर्मना में देखी दोजक जात। बाबा कबीर साहब जी ने अपने स्वरूप अंदर बड़ा प्यारा दृष्टांत दिता है। बाबा कबीर साहब आखदे जे रेत अंदर खंड पई होवे, जे हाथी नूं आख्या जाए कि तू रेत दे अंदरों खंड चुग, पर हाथी उस कारज के अंदर सफल नहीं हो सकता, वो कारज कर नहीं सकता, वो रेत के अंदरों खंड चुग नहीं सकता। इसी तरह से कीड़ी नूं आख्या जाए कि तू रेत के अंदरों खंड वखरी कर ले, खंड चुग ले, ते कीड़ी उस कारज अंदर सफल हो जाएगी, कीड़ी चुग लवेगी। बाबा कबीर साहब आखते ने हर है खांड रेत में बिखरी, हस्ती सुनी ना जाए। भाई रब्बी गुण खंड के बराबर ने, खंड वर्गे ने, पर रेत अंदर पए हुए ने। संसार अंदर ने, समाया अंदर ने, पर जे असी हंकारी हाँ ते असी उन्हां गुणां नूं प्राप्त नहीं कर सकते, गुणां नूं चुग नहीं सकते। पर हाँ जे साडे अंदर निमरता है फिर असी उन्हां गुणां नूं धारण कर लवांगे। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीटी हो के खाए। जे निमरता धारण करांगे ते फिर निमरता का भांडा साडे अंदर होएगा, गुण आके टिकणगे। जे साडे अंदर हंकार है फिर एक भी गुण साडे अंदर टिक नहीं सकता, क्योंकि हंकार साडे अंदर ने भांडे नूं मुद्दा मार दिंदा है, मन रूपी भांडे नूं उल्टा कर दिंदा है। ते बाहर जिन्नी मर्जी बरसात हुंदी होवे, जे भांडा ही उल्टा पिया होवे ते उहदे अंदर एक भी बूंद पानी की नहीं टिक सकती। इसी तरह प्यारिओ जे हंकार वस असी जदों हुंदे आ ते साडा मन रूपी भांडा बिल्कुल उल्ट हो जाता है। ते पातशाह कहंदे ने उनदे भांडे कच ना समावे, जिहड़ा भांडा उल्टा पिया होया है उहदे अंदर कुछ भी नहीं समा सकता। सीधे अमृत परे निहार, पर जिहड़ा मन रूपी भांडा सीधा है उहदे अंदर बहुत कुछ समा जाता है। इस करके गुणां नूं सीखण वास्ते निमरता की लोड़ हुंदी है, प्यार की लोड़ हुंदी है, गुणां दा गाहक बनना पैंदा है। यूनान का एक फिलोसफर सुकरात होया है। हुण सुकरात नूं जहर का प्याला दिता गया, उसनूं मारिया गया सी क्योंकि बड़ा विद्वान सी, बड़ी सच की गल को कहण वाला सी, सच की गल ते वो खड़न वाला सी। पर समय दे पुजारी लोग, समय दे शासक उन्हां नूं इह सच दा प्रवान ना होया, पर उन्होंने आख्या कि इसनूं जहर का प्याला दे के मार दिता जाए। हुण सुकरात नूं मारन वास्ते तैयारी शुरू हो गई, सुकरात नूं बुलाया गया। उस तो पहला एक उन्होंने अडंबर रचिया कि इत्थे साध बजाए जान, इहदी मौत तो पहला खुशी मनाई जाए। हजे जहर पीसिया जा रहा है, उसनूं भुलना है, कुछ समा है। तो जदों संगीत शुरू होया, धुना वजियां, ते सुकरात उस्ताद दे कोल चला गया जिहड़ा वजा रिहा सी। जाके कहते कि मैनूं धुन बड़ी वधिया लगी है। हजे जहर पीसिया जा रहा है, फिर उस जहर को भुलना है। हजे कुछ समा है कि मैं सारी जिंदगी चंगी चीज सीखता रहा वा,
जिथों भी मैनूं चंगी चीज़ मिली है मैं उसनूं निमरता विच आके प्यार विच आके सिੱਖਿਆ है। हुण मेरे कोल कुछ समा बचिया है तो मैं जिंदगी का ये अखीरला समा व्यर्थ नहीं गवाउणा चाहुंदा। मैं इहदे अंदर भी कुछ सीखना चाहुंदा। हजे जहर घुल रहा है, पीस रहा है, फिर भुलना है। उस तो पहला उस्ताद जी तुसीं किरपा करो कि मैनूं ये धुन सिखा दिओ, क्योंकि मैं मरण तो पहले धुन सीखनी चाहुंदा। मरण का अखीरला वेला भी मैं गवाउणा नहीं चाहुंदा। कहण तो भाव कि जिसके अंदर सीखण की लालसा है, जिसके अंदर गुण धारण करन की लालसा है, गुणां नूं सीखण की लालसा है, वो जिंदगी का एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाउंदा। ते पातशाह जी ने सानू सिख बनाया है। सिख का अर्थ सिखियार्थी कि जिसने सारी जिंदगी रब्बी गुणां नूं सीखना है, गुरु की मत नूं सीखना है। पर सीखांगे उदों प्यारिओ कि जदों साडे अंदर निमरता होवेगी। जे हंकार ही भरिया पिया है अंदर, फिर एक भी गुण असीं सीख नहीं सकते, एक भी गुण असीं धारण नहीं कर सकते। बिरध बाबा गुरु अमरदास महाराज जी 62 वरियां की उम्र अंदर सिੱਖੀ नूं सीखण वास्ते गुरु अंगद साहिब महाराज जी की शरण विच गए। 62 वरियां की उम्र अंदर उन्होंने सिੱਖੀ नूं सीखना शुरू किया है। भाव की सीखण वास्ते किसी उम्र का तकाजा नहीं हैगा। किसी भी वेले असीं सीख सकते हाँ। ते ज्यों-ज्यों सीखांगे, ज्यों-ज्यों नित नवे गुण धारण करांगे, साहिब मेरा नीत नवा, त्यों-त्यों साडी जिंदगी अंदर सुख आएगा, आनंद आएगा। सदा आनंद रह दिन राती, गुण कै गुणी समावनिया। जिहड़े गुणां नूं विचारदे ने, गुणां नूं धारण करदे ने, अवगुणां दा त्याग करदे ने, उन्हां दी जिंदगी अंदर आनंद आ जांदा है, सुख आ जांदा है। पातशाह बाणी अंदर आखदे ने अवगुण छोड़ गुणा को धावो। ये भाई अवगुणां दा त्याग करके ना गुणां नूं धारण करिए। जे अवगुण धारण किए हुए ने कर अवगुण पछताही जीओ, फिर पछताउणा पैंदा है। जिस इंसान ने अवगुण ही धारण किए हुए ते पातशाह कहते हैं नानक अवगुण जेतड़े तेते गली जंजीर, जे गुण होन ता कटियन से भाई से वीर। जिन्ने साडे अवगुण ने उन्नियां साडियां फाहियां ने। पर पातशाह कहते हैं इन्हां अवगुणां नूं गुणां दे नाल कटिया जा सकता है। अपने अवगुणां नूं गुणां दे नाल खत्म किया जा सकता है। कि गुण सीखण वास्ते निमरता की लोड़ है, हंकार त्यागना पैंदा है। एक कवि पयूख होया है, उसने बड़ा प्यारा कवित लिखिया है। वो कहते हैं कि बंदा धार्मिक पुरुष बन जाता है, जां पुरोहित बन जाता है, जां ज्ञानी बन जाता है, जां कोई संत बन जाता है। चोला उसने पा लिया, चिन्ह धारण कर लिया, पर सिक्ख्या कुछ भी नहीं। बहुत ने ऐसे साडी कौम अंदर जिन्हां नूं मत्था टिकाउण दा शौक है, पर जपजी ਸਾਹਿਬ ਦਾ पाठ भी पूरा नहीं आउंदा। मत्था चोला पाउण दा, मत्था टिकाउण दा शौक है, आशीर्वाद देण दा शौक है, पर की भावे ये ना पता होवे कि पहली बाणी केड़ी है, जब बाणी दियां किन्नियां पौड़ियां ने ये ना पता होवे। पर हाँ ये पता है कि मत्था टिकाउणा है, आशीर्वाद देना है। भाव की गुण कोई भी नहीं। कवि पयूख लिखता है सीम पर पाग बांधे गोगड़ काढ़े आगे को। उसने सारे पुरोहितां का जिक्र किया है। कहंदा सीस ते पग बन्नी है, पर गोगड़ अगे नूं कढ़ी हुई है। ते अगे आखदे ने माथे पर तिलक माला कर मंडित है। मथे ते तिलक लाया है,
गल विच माला पाई हुई है। अखर जो काला काले नाम के बराबर जाने, अखर काले रंग के हुंदे ने, पर वो जिहड़ा इंसान है वो अखरां नूं काला नाग जानदा है, भाव कि कोई भी अखर पढ़िया नहीं। आयु ना छूहियो सबको अडंडित है, जिंदगी भर कभी कोई चंगा साहित्य नहीं पढ़िया, जिंदगी भर चंगी कोई किताब नहीं पढ़ी, पर सारियां नूं खंडित करी जा रहा है, सारियां नूं माड़ा आखी जा रहा है, भाव कि कोई भी जिंदगी विच ज्ञान नहीं प्राप्त किया। कवि पीयूख आखदा है, कवि विद्वान को मूड़ कर जानत है, पर जिहड़े कवि ने विद्वान ने जिहड़े कुछ सोझी रखते ने ज्ञान रखते ने, ऐसा पुरोहित उन्हां नूं मूर्ख आखदा है कि जिन्ने भी कवि ने विद्वान ने सारे मूर्ख हुंदे ने। पर अगे आखदा है, देव सदै ग्रंथन को भाखत यह खंडित है। वो जिन्ने भी ग्रंथां नूं देखदा है सारे ग्रंथां की निंदिया करी जांदा है, कहंदे सारे ही ग्रंथ बेकार ने। कहत पयूख, पयूख कवि आखदा है, कहत पयूख मुझसो पर हाथ फेर कह, मुझ ते हाथ फेर के कहंदा है, व्यास जी के दादा गुरु हम महापंडित है। कहंदा मेरे वर्गा कोई वेद व्यास नहीं हैगा, मेरे वर्गा कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हैगा, मेरे वर्गा कोई पंडित विद्वान नहीं हैगा, बाकी सारे कवि विद्वान सब कुछ मूर्ख ही ने। यह है हंकारी मनुख की निशानी, जिसनूं गुरु नानक साहब आखदे ने, अपने आप नूं आख धर्मी रहा है, गुरु आख रहा है, पर गुण ते एक भी पल्ले नहीं। नानक ते नर असल खर, जे बिन गुण गर्भ करंत, हे नानक वो असल गधा है जिहड़ा गुणा तो बगैर हंकार करी जा रहा है। गुण कोई भी पल्ले नहीं, पर हंकार आसमान से चढ़ के बोल रहा है। हुण हंकार ही साडे अंदर वड्डी रुकावट है जो सानू सीखण नहीं देंदा। ते बादशाह कहंदे ने इस अवगुण नूं अंदरों खत्म करिए, ताकि सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार, सिੱਖੀ की है गुरु दी विचार, ताकि गुरु दी विचार नूं असीं ताहियों सीख सकांगे, ताहियों अपना सकांगे जदों हंकार साडे अंदरों पासे होवेगा। फरीदा गर्भ जिना वड्याइयां धन जोबन आगाह, खाली चले धनी स्यों टिब्बे ज्यों मीमाहा। हंकारी मनुख ते गुणा तो बगैर खाली चला जाता है। लोग अवगुणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना विहाजे कोई। गुण दा गाहक विरला है, गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। हे नानक कि गुणा का गाहक कोई विरला है, विरला है। ते बादशाह आखदे ने, विन गाहक गुण विच ही है तो गुण सहब हो जाए। गुणा का गाहक जे मिले तो गुण लाख बिकाए। हे भाई गुण दिते नहीं जा सकते, किसी नूं दिते नहीं जा सकते, सगों गुण धारण करनी पैंदे। विद्या दिती नहीं जा सकती, सीखी जा सकती है। हुनर किसी नूं जादू दे नाल दिता नहीं जा सकता, हुनर गुण सीखने पैंदे ने। ते जो भी शुभ गुणां नूं धारण करदे ने उन्हां दी जिंदगी अंदर आनंद आ जांदा है, सुख आ जांदा है। साडे दुख दा मूल कारण साडे अवगुण ने, साडे दुखां दे कारण साडे ऐब ने, साडे दुखां दे कारण साडे विकार ने। ते बादशाह कहंदे ने ये विकार, ये अवगुण गुणा दे नाल खत्म होणगे। जो जो शुभ गुणा नूं धारण करांगे साडी जिंदगी अंदरों अवगुण खत्म हुंदे जाणगे। एक वारी बादशाह दे कोल गायक आया, बड़ा वधिया गाउंदा सी। ते ओह आखण लगा, बादशाह मैं गावांगा ते सही,
पर जदों मैं गावां किसी का सिर ना हिले तो बादशाह कहना ठीक है, मैं हुक्म दे देना कि जिसका भी सिर हिलिया उसका सिर कट दिता जाएगा। हुण गायक बड़ा रीस दे नाल गाउंदा सी, बड़ा मन्निया होया सी। जदों उसने गाउणा शुरू किया कि ऐसी मस्ती चढ़ी 8-10 लोगों नूं जो उस महफल विच बैठे हुए सन, उन्हां दे सिर हिल पे, गाना रुक गया, गायक ने गाउणा बंद कर दिता। गायक आखदा है, बादशाह आखदा है गायक नूं कि हुण मैं इन्हां दे सिर ला दियां। गायक कहंदा नहीं, असल ये मेरे गुण की कदर करने वाले ने, इन्हां ने मौत की भी परवाह नहीं की। ये मस्त हो गए मेरा गुण सुन के, मेरी आवाज़ सुन के, जो मैं गाया उसको सुन के इन्ना मस्त हो गया कि इन्हां नूं मौत भी भुल गई, भाव की कदरदान ने। पर तुसी जिन्ने होर बैठे हो तुसी बेकदरे हो, मैं तुहानूं नहीं सुनाउणा, मैं इन्हां नूं सुनाउणा जो गुणां दे बदले मौत की परवाह कर चले सन, जिन्होंने गुणा के बदले मौत की परवाह सी। ते गुरु अमरदास महाराज जी की सिखाते हैं, ये तो सिखा रहे ने भाई, जिथों गुण मिले उत्थे आप त्याग दईए। ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर सौंपीए, विचों आप जाए। हे भाई, जे सच्चा गुरु सानू मिल रहा है, भाव सच्चा ज्ञान सानू प्राप्त हो रहा है, रब्बी गुण सानू प्राप्त हो रहे ने, ते उत्थे हंकार पासे कर दईए, तिसनों सिर सौंपीए। सिर सौंपण तो भाव अपना हंकार गुरु अगे रख दईए, विचों आप जाए, आपा भाव अंदरों त्याग दईए। ते जिहड़े नहीं त्यागदे, आपा भाव समर्पण नहीं गुणा अगे करते, बादशाह कहते ने गुणवंती गुण मिथरै, अवगुणवंती झूर। गुणा वाली जीव स्त्री सुखी हुंदी है, पर अवगुणा वाली जीव स्त्री जिसने अवगुण ही धारण किए हुए ने, वो जीव स्त्री सदा ही दुखी रहती है। बादशाह कहते ने गुणा का होवे वासला, कड वास लीजे। जे गुण होमन साजना, मिल सांझ करीजे। सांझ करीजे गुणा केरी, छोड़ अवगुण चलिए। ये भाई गुणा की सांझ करिए, अवगुणा का त्याग करिए। ते पातशाह कहते ने गुणा का गाहक नानका, विरला कोई होए। गुर प्रसादी गुण पाईयन, जिसनो नदर करे। पातशाह कहते ने भाई फिर जेड़े गुणा के गाहक बन जाते हैं ना, फिर उन्होंने ते गुरु की कृपा हो जाती है, रब जी की बख्शिश हो जाती है। फिर उन्होंने झोली अंदर गुणा की दात पैंदी है, आत्मिक गुणा की, शुभ गुणा की दात पैंदी है। पर किहड़े जिहड़े इन्हां गुणा के गाहक बन जाते हैं, सो जिहड़े गुणा के गाहक बनते हैं, पातशाह कहते हैं वो बड़े कीमती जीवन वाले हो जाते हैं। अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारिए अमुल भंडार। सो गुरु साहब कृपा कर पढ़ी सुनी गुरमत की उचार साडे सबना दे हिरदियां विच वसे, ताकि हो सकन ये लोग सुखीए, परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपी मिले, प्यार अदब सत्कार नाल आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।